Hello friends, today we will discuss the EMFT questions which were asked in GATE 2017 exam for electronics and telecommunication. Okay, but before discussing the question, uh, if we analyze the types of question in both set 1 and set 2, then in set 1 EMFT question were relatively tough as compared to set 2. Actually in set 2 there were very easy questions except one or two questions. Okay, when we compare to 2016 exam where lots of questions come from the antenna theory, this time more balanced questions were asked. You can say that from each topic you will get questions. Okay, so first we will discuss the set 1 question. So the first question was asked: the voltage of an electromagnetic wave propagating in a coaxial cable. Okay, here gamma value is given to you. Okay. Gamma means alpha plus j beta. Okay, and omega value is also given to you. And here it is asked that what is the attenuation in dB per meter. Actually, this is the real question. In this question, there are 4 to 5 lines, but actually only 3 words are required: gamma, omega, and attenuation. Okay. Gamma means alpha plus j beta. So alpha value is 0.1. We know that attenuation depends on alpha. Alpha is what? Attenuation constant. So alpha is 0.1. Then simple formula is attenuation is e की power alpha. But we need to determine in dB per meter. Okay. So 20 log 10 e की power 0.1. You will simply get the answer 0.868. But important thing यहाँ पे क्या थी क्वेश्चन पे, that you should know the formula of attenuation. Okay, or you should know how to calculate attenuation, because alpha value is directly given to you. Okay, alpha 20 log 0.1 is not the answer na, it is the attenuation constant. Your answer will be e की power alpha, and then in dB 20 log 10 e की power alpha. Okay, now next question. Actually, it is a very good question regarding polarization. क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. In this electric field, direction of electric field is ax plus ay plus j 2az. Okay. Now आपको अब ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का पोलराइजेशन है. लीनियर है कि सर्कुलर है कि इलेक्ट्रिकल है, और नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि ये प्लेन वेव है ही नहीं. ओके, सो पहले अगर हम पोलराइजेशन को आइडेंटिफाई करने जाएं, सो हियर वी कैन क्लियरली सी दैट ax है प्लस ay है, प्लस क्या है आपका j 2az है. दैट मींस यहां आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ax ay है, अगर इन दोनों को मैं एक कंपोनेंट लेता हूं तो x प्लस y कंपोनेंट एंड जो z कंपोनेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो 90 डिग्री है. सो अगर किसी ऑप्शन में x y और z में डिवाइड किया हो तो हम लोग उस ऑप्शन की तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इट कैन बी अ इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन और इट कैन बी अ सर्कुलरली पोलराइजेशन, बट कंपोनेंट शुड बी x y एंड z. अगर किसी ऑप्शन में ऐसा मेंशन है तो, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है x y प्लेन. ओके, सो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को आगे बढ़ाएं तो यहां पर इलेक्ट्रिकली पोलराइजेशन है, चांसेस है हमारे पास, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. But for electrical polarization, the requirement is that both the components should have different amplitudes. If they have same amplitude, तब वो क्या बन जाएगा आपका? Circularly polarization. Okay? So अगर हम लोग amplitude calculate करते हैं यहाँ पर, so ax plus ay कितना हो जाएगा amplitude? Under root 1 square plus 1 square under root 2. Similarly 2az, amplitude will be 2. So right है आपका amplitude is different for x y component and z component. तो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव. ओके, सो ऑप्शन सी क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है आपका एक.
इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज गिवन है nx and ny एंड आपको वेव लेंथ गिवन है 1.5 माइक्रोमीटर और इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि लाइट वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड एट द इनपुट ऑफ द फाइबर। तो आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस आफ्टर विच इट बिकम्स लीनियरली पोलराइज्ड। मींस आपकी जो वेव फॉर्म है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है, आपको वो डिस्टेंस बताना है कि वेव हमारी लीनियरली पोलराइज्ड हो जाए, कितने डिस्टेंस के बाद हमारी लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगी वेव। सो इफ वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड देन इट शुड become linearly polarized when there is an additional phase shift of pi by 2 because हमें pi by 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा ना। सर्कुलरली में ऑलरेडी आपका pi by 2 होता है, अगर हमें इसे लीनियर पोलराइजेशन करना है तो हमें pi by 2 और लेना पड़ेगा, तब ये क्या बन जाएगा आपका लीनियरली पोलराइजेशन। ओके, सो ये तो पता चल गया कि pi by 2 फेज शिफ्ट हमें और ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमें लेनी पड़ेगी, बट वी नीड टू डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है फेज शिफ्ट का, 2 पाई जेड मिनिमम अपॉन लैम्डा। लैम्डा आपको दिया हुआ है यहां पर प्रोपगेशन डिस्टेंस के रिगार्डिंग आपका जो आपका वेव लेंथ है आपको, ठीक है, कितनी दी हुई है 1.5 माइक्रोमीटर इंटू nx माइनस ny। nx और ny भी आपको यहां पर गिवन है, ओके, इज इक्वल टू टोटल फेज शिफ्ट जो आपने ऐड की है पाई बाय 2। तो सारी वैल्यूज अगर आप पुट कर दोगे तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर। बट जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि सेट 1 रिलेटिवली आपका टफ था, उसका रीजन यही है कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक ज्यादा यूज नहीं करना है, लॉजिक सिर्फ इतना ही था जो बहुत इजी था कि सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव है, सो फॉर लीनियरली पोलराइज्ड वेव पाई बाय 2 वी नीडेड, ओके। बट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाता, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इस लॉजिक को अप्लाई कर देते हो तो क्वेश्चन जस्ट 10 सेकंड का है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हाफ वेव डाइपोल इज केप्ट इन द एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में आपका एक डाइपोल कैप किया गया है ओरिएंटेड अलोंग 45 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो अगर हम यहां डायग्राम ड्रॉ कर लें, ये आपका डायग्राम है, आपका एक्स वाई प्लेन है और 45 डिग्री है फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ नल इन रेडिएशन पैटर्न, और जो डायरेक्शन है नल का वो 0 टू पाई के बीच होना चाहिए फाई का, ओके। हियर द एंगल theta is measured from the z axis and angle phi is measured from the x axis in the xy plane। तो हम लोग ध्यान से अगर इस चीज को देखें, अप्रोच को देखें, तो आपका जो एंगल phi है वो मेजर कहां से हो रहा है x एक्सिस से इन द xy प्लेन, और जो आपका डाइपोल है वो भी कहां है आपका xy प्लेन में ही है 45 डिग्री फ्रॉम द x एक्सिस, ओके। सो अगर हमें नल गेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर फाई के लिए जो कि ऑलरेडी आपका एक्स वाई प्लेन में और एक्स एक्सिस से ही एंगल बना रहा है, वी नीड 45 डिग्री ऑफ फाई, देन 45 विल बिकम 90 डिग्री, सो फाई वैल्यू विल बी 45, दैट्स फॉर श्योर। ये हमारा क्लियर हो गया। तो अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आपकी फाई वैल्यू जो 45 है वो आपको कहां मिल रही है, आपको ऑप्शन नंबर ए पर, ठीक है। तो क्लियरली है कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, बट हम लोग और देख सकते हैं। थीटा अगर देखें तो जो थीटा है आपका वो क्या दिया हुआ है, इज मेजर्ड फ्रॉम द जेड एक्सिस। सो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप जेड एक्सिस से मेजर करोगे और आपको नल चाहिए तो क्या होगा आपका टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। तो क्लियर है, यहां पर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ओके ना। अगर हम लोग सेट 2 के क्वेश्चंस पे आए हम लोग, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और एक सिंपल सा लॉजिक पता होना चाहिए। क्या दिया है आपको, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है S1 S2, रेडियस दोनों की गिवन है आपको,
बी ग्रेटर देन ए है रेडियस। आपको ये बताना है दोनों स्फीयर के करस्पॉन्डिंग कि वोल्टेजेस क्या क्या होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी। आपको रिलेशन बताना है वोल्टेजेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जबकि वहां पर एक चीज और आपको गिवन है कि फॉर सम चार्ज प्लेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, चार्ज प्लेस किया जा रहा है इस स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहां पर आपको कि बोथ केसेस में आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, बट नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। r क्या होती है आपकी रेडियस, यहां पर आपको r क्या दिया है, a दिया हुआ है फॉर S1 एंड b दिया हुआ है फॉर S2। अगर आप क्लियरली यहां पर देखो तो जो b है वो ग्रेटर देन है a के। सो ऑब्वियसली बात है अगर b a से ग्रेटर है दैट मींस EA शुड बी ग्रेटर देन EB। सो सिंपली अगर आप ऑप्शन को चेक करो तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, now in next question simply transmission line is given to you and it is terminated in a television set means television set आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ओके, आपको VSWR की वैल्यू गिवन है यहां पर 5.8 एंड आपको डिटरमाइन करना है परसेंटेज ऑफ पावर दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोड। ओके, सो VSWR का सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस मॉड ऑफ टाउ अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ टाउ। टाउ क्या है आपका, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 0.705 बिकॉज आपको VSWR यहां पर गिवन है 5.8। नाउ परसेंटेज ऑफ पावर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोड, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है टाउ का स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा आपका, टाउ स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.705 का स्क्वायर, कितना आंसर आ जाएगा 0.4970। आपको किसमें बताना है इसको, परसेंटेज में, इनटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 49.70। ओके, नेक्स्ट, द परमिटिविटी ऑफ अ वाटर एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज is 1.75 epsilon naught. Okay, it is found that an isotropic light source at a distance d underwater forms an circular area of 5 meter. Okay, critical angle theta c. Now we need to determine value of d. अगर हम लोग क्लियरली देखें इस क्वेश्चन पे तो यहां पर दो मीडियम दिए हुए, एक एयर है और एक वाटर। एयर के लिए तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 होती है, वाटर की आपको गिवन है 1.75। ओके, ना आपको यहां पर डिस्टेंस दी हुई है फिगर में 5 मीटर, आपको डिस्टेंस d कैलकुलेट करनी है। क्रिटिकल एंगल आपको बोल दिया है थीटा c है। ओके, अगर डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा रीड्रॉ करें, सो हियर आर टू मीडियम्स। ओके, 5 मीटर अगर ये वैल्यू है तो 5 मीटर आपकी ये भी होगी। जो थीटा c वाला था आपका पोर्शन वो यहां से टच कर रहा था तो मैं इसको एक्सटेंड कर दिया। ओके, सो दिस इज योर d, दिस इज योर 5 मीटर। So if this is a theta c, then from the angle law this is also theta c. So for theta c critical angle we know the simple formula that sin theta c is under root epsilon r1 upon epsilon r2 upon epsilon r1. Okay, so theta c value will be sin inverse under root epsilon r2 upon epsilon r1. You can easily calculate theta c. Okay, now we now want to determine d value. d की वैल्यू का डिटरमाइन करनी है तो अगर मैं थीटा c का tan ले लूं तो tan थीटा c will be 5 upon d, 5 upon d, so d value will be 4.34 meter. ठीक है, so this question is also very easy if we know the simple formula of critical angle and simple geometry. That's it. Now next question is related to waveguide. यहां पर आपको रेक्टेंगुलर वेवगाइड गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ओके, TE10 मोड के लिए एंड आपको फिर नेक्स्ट गिवन है हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट हायर मींस TE20 मोड के लिए। दैट मींस सिंपल क्वेश्चन है यहां पर,
आपको एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है TE10 मोड के लिए और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट हायर, दैट मींस TE20 मोड के लिए। कुछ कंडीशंस गिवन है आपको, जो TE10 मोड की जो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हो एटलीस्ट 20% अबव, तो आपको 20% हायर कैलकुलेट करनी है। जो भी आपकी एफसी निकलेगी उसका आप 25% हायर ले लो। ओके, नाउ जो आप TE20 मोड की कैलकुलेट करोगे उसका आपको 0.95 लेना है, दैट मींस 95% लेना है आपको। यहां पर 95% हायर नहीं लेना है, उसी एफसी का ही 95% लेना है TE20 मोड के लिए। पर TE10 में क्या लेना था, उस एफसी का 25% और ज्यादा लेना था। ओके, सो फॉर रेक्टेंगुलर वेवगाइड वी सिंपली नो दैट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, सिंपल फॉर्मूला है आपका। ओके, नाउ फॉर TE10 क्लियर है हमारा कि m1 हो जाएगा और m क्या हो जाएगा 0। सो अगर हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, c क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट, सो आपका कितना आंसर आ गया 6.55 गीगाहर्ट्ज। सो वी नीड टू डिटरमाइन 25% हायर देन द fc, तो कितना हो जाएगा 8.19 गीगाहर्ट्ज। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? यस, ऑप्शन नंबर ए में भी आपका 8.19 है और ऑप्शन नंबर बी में भी। ओके, सो हम लोग को एक और कैलकुलेशन करना ही होगा यहां पर। सेकेंड कैलकुलेशन क्या था, 95% ऑफ द नेक्स्ट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मींस TE20 मोड। तो TE20 मोड के लिए कितना आ जाएगा एफसी आपका, जस्ट डबल हो जाएगा 6.55 का 13.10। इसका अगर 95% कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 12.44 गीगाहर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, now next question, a vector f is given to you, is irrotational, then the values of the constant k1 k2 and k3 are, okay, सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पर। अगर कोई भी वेक्टर इरोटेशनल है दैट मींस उसका कर्ल क्या होगा 0 होगा। तो ये एक्चुअली कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन था EMT का, जो कि आपका सेट 2 में प्रेजेंट है। आपको सिर्फ कर्ल निकाल के उसको 0 के इक्वेट करना है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। सो डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल है, ax ay az डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और हम लोग को ax की करस्पॉन्डिंग कितना है एप्टीट्यूड 3y माइनस k1z, ay के k2x माइनस 2z एंड az पे कितना है माइनस k3y माइनस z, सामने माइनस साइन है आपका। सिंपल से अगर आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दोगे। तो अगर बोथ साइड आप कंपेयर करते हो तो ax का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, हियर कितना है माइनस k3 प्लस 2, तो k3 क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। सिमिलरली k1 0 के इक्वल और k2 3 के इक्वल। सो k1 0, k2 3, so 0 3 2, option number B is correct. Okay, now that's all for EMFT questions. Okay, if you have any doubt you can write in the comment section. Okay, thank you.